भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक 21 से 29 तक। बाह्य स्पर्शेश सिक्तात्मा विंदयात्मनि यत् सुखम सब्रह्म्योपयुक्तात्मा सुखमिक्षयम शुनुते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आदिन्त्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति है यः सोधुन प्राक्षरीर विमोचनात् कामक्रोधोद्भवम वेग स युक्त स सुखी नरः यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकंशा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रता कामक्रोधयुक्ताना यतिना यच्चेत्सम् अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्ते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वायांश्चिक्षुश्चैवात्रे भ्रुवो प्राणापनो समो कृत्वा नासाभयं प्रचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोषप्रायेण विक्तेच्छाभय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्मषु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यासयोगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 5, verses from 21 to 29. He whose mind remains unattached to sense objects, derives through meditation, the sattvika joy which dwells in the mind, then that yogi, having completely identified himself through meditation with Brahma, enjoys eternal bliss. The pleasures which are born of sense contacts, are verily a source of suffering only, though appearing as enjoyable to worldly-minded people. They have a beginning and an end, they come and go. Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. He alone, who is able to withstand, in this very life before casting off this body, the urges of lust and anger, is a yogi, and he alone is a happy man. He who is happy within himself, enjoys within himself the delight of the soul, and, even so, is illumined by the inner light of the soul. Such a yogi, Sankhya Yogi, identified with Brahma attains Brahma, who is all peace. The seers whose sins have been purged, whose doubts have been dispelled by knowledge, whose disciplined mind is firmly established in God and who are devoted to the welfare of all beings, attain Brahma, who is all peace. To those wise men who are free from lust and anger, who have subdued their mind and have realized God, Brahma, the abode of eternal peace, is present all round. Shutting out all thoughts of external enjoyments, with the gaze fixed on the space between the eyebrows, having regulated the prana, outgoing, and the apana, incoming, breaths flowing within the nostrils, he who has brought his senses, mind and intellect under control, such a contemplative soul intent on liberation and free from desire, fear and anger, is ever liberated. Having known me in reality as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all the worlds, and the selfless friend of all beings, my devotee attains peace. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 5th chapter entitled, The Yoga of Action and Knowledge. बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यानरूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपानवाओं को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षप्रयण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यहाँ अब अध्याय 5 समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।